A very good afternoon everyone. How are you all? I hope you all are well and healthy. Today in this video we will do the exercise 1.2. So please students have a look on the board. What is your first question? Question number 1. Express each number as a product of its prime factors. First one is 140, second one is 156, third one is 3825. We will do prime factorization of these two numbers. So see the first one part, 140, prime factorization of 140. 2 prime numbers, है ना? We will use only prime numbers. Prime numbers. So smallest prime number is 2. So 2 7 ja 40. 2 2 3 ja 6. 2 5 ja 10. Then 2 की टेबल में 35 नहीं आता तो then next prime number is 3. 3 की टेबल में 35 not. Then 5 5 7 ja 7 1 ja. So 140 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 7. That means 2 power 2 into 5 into 7. आपका आंसर हो गया. ठीक, दिस इज फर्स्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चंस आपने स्मॉलर क्लासेस में किए 6th and 7th में. प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ द सेकेंड वन सॉल्यूशन. 156 2 7 ja 14 1 carry 2 8 ja again 2 2 3 ja 6 2 9 ja then 2 की टेबल में आता है नहीं, दिस इज ऑड नंबर. देन 3 यस 3 1 ja 3 3 3 ja 9. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 की टेबल नो 7 नहीं आता है. 11 की टेबल में नहीं. देन 13 13 1 ja 13. So 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. So we can write 2 power 2 into 3 into 13. This is our answer. Now next one is prime factorization of 3825. 3825. 2 की टेबल में 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज ऑड. Then next try with 3. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 2 carry, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 2 carry 22, 7 ja 21, 1 carry 5 ja. Again 3 3 4 ja yes 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 4 ja 12, 3 2 ja 6, 1 carry 15, 3 5 ja 15. Again 3 से नहीं हो रहा. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 5 8 जा 40, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25. देन 5 5 1 जा 5, 3 कैरी 7 जा 17 1 जा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So we can write 3 power 2 into 5 power 2 into 17. So remaining parts you will do yourself because ये questions आपके बहुत ही simple हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो रिमेनिंग को आप 4th और 5th को आप खुद करेंगे. ठीक. Dear students, now have a look in question number 2. What is question number 2? Find the LCM and HCF of the following integers by applying pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. First of all we have to find out the LCM and HCF of these two numbers, then we will do verifications. Okay, now see the first one part. We will use prime factorization method. So prime factorization of 26 का prime factorization कीजिए. prime numbers 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 13 1 ja 13. Now 91 किसकी टेबल में 2 की टेबल में आता है नहीं बिकॉज लास्ट डी ऑड. देन 3 चेक कीजिए 3 से 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया आपका 1 नहीं आता.
5 की टेबल नहीं आएगा. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. 7 1 जा 7, 2 कैरी 3 जा 13 1 जा 13. So what is SCF? SCF, highest common factor. What is the factor of 26? 2 into 13 and 91, 7 into 13. So what is the common number? 13. So SCF is equal to 13. LCM, how to find LCM? LCM में क्या करते हैं, रिमेनिंग नंबर्स को आप लिख देंगे. एक 13 हो गया आपका, रिमेनिंग नंबर दूसरा क्या है 2 और 7. कितना हो गया ये 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182. LCM is 182 and SCF is 13. Now verification. LCM into SCF. पहले हम LCM into SCF लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? LCM into SCF. What is LCM? 182 into what is SCF? 13. So 13 to जा 26, 2 carry, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, 10 carry, 13 1 जा 13, 13 और 10 23. ठीक है ना. 13 2 जा 26, 2 carry, 13 8 जा 104, 10 carry, then 10 1 जा 13 1 जा 13 और 10 23. And now right hand side, what is right hand side? Right hand side is product of two numbers. Product of two numbers. What is product of two numbers? What is two numbers? 26 into 91. इनको मल्टीप्लाई कीजिए 91 into 26 को. 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 5 8 और 5 13, 2 3 5 6. एक गड़बड़ हो रहा है क्या? 13 2 जा 26, 2 करी 2 6 1 जा 6, 6 9 जा 54. अच्छा सॉरी 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पे, ये आ गया अप हो गया 2, दैट इज 2 3 6 6. ठीक है, वेरीफाई हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस verified. Now see the second one part. First do the prime factorization of 92. What is the prime factorization of 92? 2 4 ja 8, 2 6 ja, then again 2 2 2 ja 2 3 ja, then 23 is prime number, so it is divisible by only itself. Now the second number is 510. 2 2 ja 4, 1 carry, 2 5 ja 10, 2 5 ja 10, then 3, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 8 जा 24, 1 carry, 3 5 जा, then 5 17 जा, then 17 1 जा, 17 1 जा. So what is SCF? How to find SCF? What is the factors of 92? 2 into 2 into 23. And what is the factors of 510? 2 into 3 into 5 into 17. SCF means highest common factor, only 2 is common, so SCF is equal to 2. And LCM, how to find LCM? LCM को लिख देंगे हम 2, इस पेयर से केवल 2 आएगा, देन ये 2 रिमेनिंग नंबर्स को आपने लिख देने जितने बचे हैं आपके 3 5 17 and 23. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60,
60 into 70 into 23, 17 6 102 into 23। देखिए 1020 को 223 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 3 2 6, 300 3 1 0 4, देन 0 2 0 6 4 3 2। द एलसीएम इज 2 3 4 6 0। ठीक है, एलसीएम आपका हो गया 2 3 4 6 0। देन वेरिफिकेशन left hand side. What is left hand side? LCM into SCF, LCM into SCF. What is LCM? LCM is 23460 into 2, 200 0, 2 6 12, 1 carry, 2 4 8, 9, 2 3 6 and 2 2 4, 200 0, 2 6 12, 1 carry, 2 4 8, 9, 2 3 6 and 2 2 4. Then product of two numbers, right hand side. Then right hand side, product of two numbers, कौन से नंबर है? दो 51 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जीरो को हम लास्ट में लगा देंगे। 2 1 2, 2 5 10, 9 1 9, 9 5 45, 2 9 6 4, जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, तो यह आया आपका 4 6 9 2 0। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side both are equal. Left hand side LCM into SCF is 46,920 and right hand side product of two numbers is 46,920. It's so left hand side is equal to right hand side, hence verified, got it? So to question there are three parts. So one part you will do yourself. Now dear students, question number 3 आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देन यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। सो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट और सेकेंड की तरह ही सेम है। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट SCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. So see solution. देखिए आपने एक रूल पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इंट्रोडक्शन में भी बताया था फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, ये होता है LCM into SCF. Product of two numbers. So what is the two numbers? We have 306 into 657. Product means multiply. Multiplication of these two numbers is equal to LCM. LCM में find out करना है into SCF. How much SCF is? 9. We have to find out here LCM, then multiplication into 9, मल्टीप्लाई वाला नंबर आपका इट गोज ऑन डिवाइड। सो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कीजिए इसको, 9 7 63, 2 कैरी 27 3 जा, सो 306 इंटू 73, डू मल्टीप्लाई 306 into 73, 3 6 18, 1 carry, 3 0 0 1, 3 3 9, 7 6 42, 4 carry, 7 0 0 4, 7 3 21, 8 3
9 और 4 13, 1 carry 2 and 2. This is coming 22,338. This is our answer. So LCM is equal to LCM of 306 और 657 is equal to 22,338. ये आपका LCM हो गया. बस हमने क्या किया इसमें, इस फॉर्मूले का यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. LCM आपको फाइंड आउट करना था, HCF गिवन है एंड टू नंबर्स वी हैव, देन वी विल यूज दिस. हमने इसका यूज करके आंसर को फाइंड आउट कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to power n can end with a digit 0 for any natural number. सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था कि आपको ये चेक करना है कि 6 n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 raised to power n can end with a digit 0. n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर 0, इसका जो लास्ट डिजिट है क्या 0 आ सकता है? क्या इसका लास्ट डिजिट n की किसी वैल्यू के लिए, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n की किसी n को हम कुछ भी रखते हैं 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, तो n की वैल्यू अगर ये नंबर्स नेचुरल नंबर रखने पे क्या इसका लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या हो सकता है. इसमें लास्ट डिजिट 0 होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है. पहले मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है. लास्ट डिजिट 0 होने के लिए, लास्ट डिजिट 0 क्या हो सकता है? या तो 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है ना. तो इट मीन्स उस डिजिट के क्या फैक्टर होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए, या 2 2 5 एंड 5. देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, अगर 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट अगर 0 आता है तो उसमें एटलीस्ट 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 और 5. एक 0 है तो 2 0 है तो उसमें क्या होंगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5 होने चाहिए, सॉरी 5 की पावर 2 होना चाहिए. ऐसे ही इसमें 3 है तो 3 जीरोज हैं तो इसमें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 होने चाहिए. अगर किसी नंबर में आपके n जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं? n जीरोज हैं, तो उसके क्या फैक्टर होने चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में होने चाहिए. उसके एटलीस्ट 2 पावर n इंटू 5 पावर n फैक्टर होने चाहिए, है ना. अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो एटलीस्ट उस नंबर के कम से कम 2 और 5 क्या होने चाहिए? उसके फैक्टर होने चाहिए. बट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 पावर n. अगर 6 की पावर n के हमने फैक्टर किए तो क्या आया? 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n. 6 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3. बट हमने बोला कि अगर कोई नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 आता है तो उसके कम से कम क्या होने चाहिए? 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए. 2 तो है, क्या 5 है? 5 नहीं है. तो इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी वैल्यू के लिए 6 raised to power n can never end with the digit 0. ये कभी भी 0 से उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता. Why? Because हमने बताया ना, अगर 0 उसका लास्ट डिजिट है उसके कम से कम 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए उस नंबर के. बट यहाँ 6 के तो फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 और 3 आ रहे हैं. 2 तो है बट 5 नहीं है. जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज को हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देते हैं. क्या? इफ एनी नंबर ends with the digit 0, तो it should be divisible by 10. It should be divisible by 10. अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0 है तो वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा.
या इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन अदर वर्ड्स we can say it will also divisible by, it will also divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 into 5, है ना. But the prime factorization of 6 raised to power n, but prime factorization of 6 raised to power n is equal to 2 into 3, है ना. But the prime factorization of 6 raised to power n is 2 into 3 raised to power n. 2 is here, but 5 is not here. Hence we conclude that क्या conclusion निकलेगा यहाँ से? 5 is not in the prime factorization of of 6 raised to power n. Therefore, for any value of n 6 raised to power n will not divisible by 5. n की किसी वैल्यू के लिए 6 पावर n जो होगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. Therefore, या hence we can say 6 raised to power n can not end with the digit 0 for any value of natural number of any value of n, where n क्या आपका n is natural number. ये आपका प्रूफ हो गया. ठीक. Then now next question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Composite numbers क्या होते हैं? Composite numbers more than 2 factors. है ना. including 1 also. अगर 1 को इंक्लूड करते हैं तो इसके कितने होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे. ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट एंड व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट? लेट्स हैव अ लुक. 7 into 11 into 13 plus 13, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए व्हाट इज कॉमन? 13 इज कॉमन, टेक आउटसाइड. तो 7 into 11, 13 we took outside, तो what is here? 1. तो 13, 7 11 जा 77 plus 1. So 13, 77 plus 1 78. 78 के फर्दर फैक्टराइजेशन कीजिए. 13 into 2, 78 के फैक्टर क्या हो गया आपके? 2 3 जा 2 9 जा
देन 3 1 जा 3 3 जा, देन 13 1 जा, तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना, या वी कैन राइट 13 रेज, या वी कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू पावर 2, 13 रेज टू पावर 2। देखिए यहाँ पे इस नंबर के कितने फैक्टर आए, मोर देन 2 फैक्टर्स आए, तो हेंस the given expression the given expression having 2 into 3 into 13 as its factors, therefore it is a composite number, okay. Now see the next one. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. What is common? 5 is common. Take outside 5. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus, we took 5 outside, so what is the number here? 1. केवल 1 बचा आपका यहाँ पे. 5 7 6 या 42 and 4 3 जा 12, 12 हो जा 22, 42 into 4 3 जा 12, 2 जा 24 plus 1, 5 24 2 जा 48, 4 carry, 24 4 जा 96, 96 और 4 100 plus 1, so this is coming 5 into 100 109. Here you can see I can write also here 1, ठीक है. तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी? मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1. देखिए यहाँ पे इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 5 और 109, सॉरी 1009. Hence the given expression has 5 and 1009 as its factors, therefore it is a composite number. Is our answer. So now dear students, see the last question of this exercise is question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? What is the question? Question is, when Ravi and Sonia running around a circular path at the same time and at the same direction suppose this is the starting point, this is a circular, ये आपका circular field है, and this was Ravi and Sonia, this is Sonia and this is one Ravi. They are running in the same direction at the same point and the same time. दोनों क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर फील्ड की चारों ओर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं. जब सोनिया स्टार्ट कर रही है दौड़ना इसकी चारों ओर, तो एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स. ठीक है. और उसी सर्कुलर फील्ड को जब रवि इसके चारों ओर दौड़ना स्टार्ट करा तो हाउ मेनी टाइम्स इट टेक,
इट टेक्स 12 मिनट्स। ठीक, जब इसके चारों ओर दौड़ रहे होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रवि सोनिया को क्या करेगा, क्रॉस करके, मीन्स उसको पछाड़ के दूसरा चक्कर लगा रहा होगा या तीसरा चक्कर लगा, हो सकता है कि दूसरे चक्कर पे तीसरे चक्कर पे उसको क्रॉस करके वो नेक्स्ट राउंड के लिए दौड़ रहा होगा। क्या है इसका मतलब है, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है कि वो टाइम क्या होगा जहां पे वह रवि सोनिया को क्या कर रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा आपका एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। इसका मतलब हमें इन दो नंबर्स का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा। गॉट इट? सो लिखिए टोटल टाइम टेकन फॉर this for completing this one round of a circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड हियर एलसीएम ऑफ, सो एलसीएम ऑफ 12 and 18 क्या होगा। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका आपके दो मेथड्स हैं, या तो दोनों नंबर्स को एक साथ लिख के आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 9 को यू कैन राइट इट, देन 3 1 जा, 3 जा, देन 3 1 जा, 3 की टेबल 1 नहीं आता तो 3 1 जा, 1 को ऐसे लिख देंगे 3 1 जा 3। तो एलसीएम इज 2 into 2 into 3 into 3, that comes 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36 minutes, 36 minutes. Hence what we can write, hence Sonia and Ravi will meet after Sonia and Ravi will meet together after 36 minutes. Okay, after 36 minutes. Thank you. See you soon in next video. Take care and bye bye.